Hello students, Jai Hind to all. This is Vivek Srivastav sir, and I am here with the video of class 7, and that belongs to subject history, and the topic will be major military campaigns and events of the great Mughals, यानी कि मुगलों के द्वारा लड़े गए मिलिट्री कैंपेन्स, यानी जो बड़े सैनिक विद्रोह हैं, जो लड़ाइयाँ हैं वो, और उनके जो इवेंट्स थे, यानी कब कब लड़े गए. ओके, so without wasting a time, first I have a request, please see this video till the end, okay, because this video is going to be long. This video is going to be long, so watch till the end, no need to skip. Okay, so beta, let me start the topic. First name, the first important ruler, that is Babur. Okay, that is Babur, and Babur have four battles, four important military campaigns, that is four battles, that is 1526, 1527, 1528 and 1529. Okay, wait for a second, I am preparing the chart on the board, you can see it easily from the board, so wait. So beta, here it is, that is a table written on the board, and it will be very helpful to understand the topic. The military campaigns that was done by Babur. There are only four campaigns. First one in 1526, Battle of Panipat, 1527, Battle of Khanwa, 1528, Battle of Chanderi, and 1529, Battle of Ghagra. Okay, so some knowledge about these battles, let me explain. In 1526, defeated the Afghan ruler, Babur defeated the Afghan ruler Ibrahim Lodi at Panipat, captured Delhi and Agra. Okay, in 1527, defeated Sisodia, Rajput ruler of Mewar, Rana Sanga and his allies at the Battle of Khanwa. Okay, and took over the fort of Bayana, that is located in Rajasthan. Next, two battles have been done. Next, in 1528, the Battle of Chanderi. It means from in Chanderi, he defeated the Rajputs at the Battle of Chanderi, and that is now in Madhya Pradesh. And the last battle of Babur, it was the Battle of Ghagra. At the place, he defeated the Afghan chiefs Okay, they defeated the Afghan chiefs at Ghagra. Only four battles from Babur. Now next, to follow Babur was his son Humayun. Okay, Humayun. So the battles from Humayun, important battles, important events done by Humayun. In 1539, he was defeated by Afghan chieftain Sher Khan at the Battle of Chausa. Sher Khan means Sher Shah Suri. शेर शाह सूरी के द्वारा ये चौसा के मैदान में, चौसा के युद्ध में हराए गए थे. चौसा, दैट इज बिलोंग्स टू बिहार. ओके, नियर बक्सर. सो in Chausa in 1539, he was defeated by Sher Khan. In 1540, he was defeated by Sher Khan at the Battle of Kannauj. Okay, first he was defeated in Chausa, then again he was defeated in Battle of Kannauj by the same opponent, that is Sher Khan. Okay, and forced to take refuge to Iran, और जो है इनको भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़ के ईरान. ओके, नाउ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, दैट वाज रिकैप्चर दिल्ली इन 1555. 1555 में उन्होंने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में लिया. ओके, सो एज पर हिज फादर्स विल, Humayun gave a Mughal provinces to each of three brothers, but they always conspired against him. This weakened his power against the Afghans.
यानी कि अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उसने अपने तीनों भाइयों को अलग अलग प्रोविंसेस प्रदान किए थे, लेकिन तीनों भाइयों ने कभी भी इनका सपोर्ट नहीं किया और इस तरह से अफगानों के अगेंस्ट इनकी पावर कम हो गई और ये हार गए। नेक्स्ट टू फॉलो दैट वाज अकबर। अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं एंड he became emperor in 1556 on a very low age of 13 years. Okay, between 1556 and 1570 fought the second battle of Panipat, that was in 1556 under Bairam Khan. It means he was a old age king. It means very sorry, not old, यंग एज किंग। ओके, बहुत छोटी उम्र में वो राजा बने थे, तो बैरम खां उनके संरक्षक थे और उनके कंट्रोल में उन्होंने 1556 में लड़ाइयां लड़ी। पानीपत का सेकेंड अंडर बैरम खां डिफीटेड हेमू एंड द मिलिट्री ऑफ चीफ सुल्तान आदिल शाह सूरी डायनेस्टी एंड अफगान आर्मी, और उन्होंने मिलीजुली शक्तियों को हराया, आदिल शाह सूरी की और अफगान आर्मी की। ओके, सो सेट द किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना, उन्होंने जो है मालवा और गोंडवाना को अपने कब्जे में लिया। द कैपिटल ऑफ सिसोदिया राजपूत एट द फोर्ट ऑफ रणथंभौर, और रणथंभौर को भी अपने कब्जे में लिया। नेक्स्ट 1572 1585, 1570 से 1585 के बीच में शेष गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, उन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे भी अपना कब्जा जमाया। ओके, इन 1585 टू 1605, 1585 से 1605 के बीच में सेज्ड कंधार फ्रॉम सफाविदिस annexed Kabul after the death of Mirza Hakim and Kashmir, Berar, Khandesh and parts of अहमदनगर। यानी कि 1605 तक इन्होंने बहुत सारे प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट टू फॉलो वर जहांगीर एंड he was the eldest son of Akbar. So his important works are as follows: the Sisodia Rajput ruler of Mewar, Amar Singh accepted Mughal services, यानी अमर सिंह ने मुगल सर्विसेज, मुगलों के पास सेवा करने का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। कंक्वेड कांगड़ा, नाउ इन हिमाचल प्रदेश, इन्होंने कांगड़ा पे, इट मीन्स जहांगीर ने कांगड़ा पे भी कब्जा किया, अब ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एंड किश्तवाड़ एंड कश्मीर, और कश्मीर में भी अपना कब्जा किया। नेक्स्ट, लॉन्च कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड द अहमदनगर हु वेर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इन्होंने जो है कैंपेन्स किए, मिलिट्री कैंपेन्स किए अगेंस्ट द सिखों के खिलाफ, अगेंस्ट द अहोम्स, अहोम एक वन जातीय है उनके खिलाफ, और इसके अलावा जो है उन्होंने अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। ओके, लास्टली इन 1622 लास्ट कंधार टू सफाविद्स ऑफ ईरान, और उन्होंने कंधार को अपने हाथों से खो दिया या हार गए। आफ्टर दैट फॉलोड बाय हिम इट वाज शाहजहां। ओके, तो सी द मेजर मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ शाहजहां। In 1632, annexed Ahmednagar, forced the ruler of Bijapur and Golconda to accept him as overlord. यानी कि उन्होंने 1632 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने कब्जे में लिया। डिफीटेड पुर्तगीज ट्रेडर्स एट हुगली बंगाल, और हुगली बंगाल में उन्होंने पुर्तगालियों को भी पराजित किया। In 1635, defeated the Rajput Bundels and seized Orcha from Madhya Pradesh, now in Madhya Pradesh from them. और 1635 में इन्होंने राजपूत और बुंदेलों को हराया, और मध्य प्रदेश की एक जगह है ओरछा, उसे जो है अपने कब्जे में लिया। 1638 recaptured Kandahar from Safavids of Iran, but again lost in 1649.
1638 में कंधार को अपने कब्जे में लिया, लेकिन 1649 में फिर वो कंधार को हार गए। रिलेशंस विद सिख स्ट्रेंड, और जो सिखों के साथ उनके व्यवहार थे, जो रिलेशन संबंध थे, वो स्ट्रेंड हो गए और खराब हो गए। लास्टली द रूलर फ्रॉम दिस डायनेस्टी वाज औरंगजेब। इन 1663 डिफीटेड अहोम्स। 1663 में औरंगजेब ने अहोम्स को डिफीट किया। सरप्रेस्ड यूसुफ जाई एंड सिक्स ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यूसुफ जाई को और सिखों को इन्होंने पराजित किया। गेन्ड इनिशियल सक्सेस इन बैटल अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी, यानी कि शिवाजी के अगेंस्ट इन्होंने जो है छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त की। इंसल्टेड एंड इम्प्रिजन्ड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, शिवाजी को इन्होंने कैप्चर किया, जेल में डाला, और जब वो इन लोगों से समझौता करने के लिए, औरंगजेब से, मुगलों से समझौता करने के लिए आए थे, तो उन्होंने इन्हें कब्जे में किया। सो शिवाजी एस्केप फ्रॉम आगरा, किसी तरह शिवाजी वहां से भागे एंड कार्व्ड आउट हिज ओन किंगडम एंड बिगन टू अटैक द मुगल्स फ्रीक्वेंटली, और वापस जाने के बाद शिवाजी ने अपने साम्राज्य को फिर से संभाला और मुगलों पे अटैक करना शुरू किया। From 1681 to 1707, expanding his empire to the Deccan and consolidated his position there, यानी कि 1681 से 1707 तक औरंगजेब ने अपनी शक्तियों को दक्षिण भारत की तरफ बढ़ाया, ठीक है, और वहां पे सेटल होने की कोशिश किया। 1685 अनेक्स्ड बीजापुर, 1687 अनेक्स्ड गोलकुंडा एंड campaign in the Deccan against the Marathas who had started guerrilla warfare. So under him Mughal Empire reached its greatest extent, यानी कि औरंगजेब के समय में मुगल जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक, अधिकतम दूरी तक फैल गया, ओके, एंड स्पैनिंग नियरली ऑल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और भारत के लगभग सभी सब कॉन्टिनेंट में ये इनका एम्पायर फैल गया। सो बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल हैव गॉट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, whenever I am going to provide you, that will be from the same chapter. I think one topic is remaining. Till then, you keep watching my channel. Have a nice day. Thanks for watching.